हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 24, जिसमें आज हम करेंगे गुड गवर्नेंस, यानी जो है अच्छा शासन, या इसे कह सकते हो आप सुशासन। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एनएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई में हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सिलेबस में गुड गवर्नेंस है तो उसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होती है, और डिस्प्ले भी जो होता है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have doing a most important chapter is a good governance. There a good governance is the most important chapter. There is a first point arrive here is the meaning of good governance. There is the most important the meaning of good governance here. In order to understand the concept of good governance, we shall be first have to know the meaning of governance. What is a governance? It has been defined as the use of power and authority by those he is government to provide a good and service to people, to be uphold their common goods and fulfill there is a aspiration and need of the common man. The governance therefore is concerned with the power, status, policy, plan and the project that aim at the improving there is substance is the quality of life. The people expect there is a government to the proceed with it is a task in a way that is a maximum result follow with the minimum cost or investment. The governance become a good when it is a decision and action of the government are based on a people's consent, literacy and accountability. Thus a good governance is a concern with their highly quality is a governance. All the section of the societies today judge there is a government by their governance. Earlier concepts and state was considered to the most effective investment of a good governance. In ascent and medals, India is a king through the Arthurians was the supposed to be a constructions and the responsives to be a need of the subject. There is a most important here. In modern time, good governance implies there is an ingredient of citizenship as well as the accountable and the constitutionally government. The good governance is also key developmental concept today. The debate is only related to the question how to the varying about a development. It is a concept that is inclusive and positive in a nature. It is inclusive in a so far as a aim it is an involvement, but people is a centralized. It is a positive to be extended or building up new level of skill, knowledge and support for development. Let us now to discuss some of the feature and characteristics of a good governance here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है अच्छा शासन। देखिए ये अच्छा शासन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसे हम सुशासन के नाम से भी जानते हैं, यानी गुड गवर्नेंस। आखिर गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ये पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है कि अच्छे शासन का क्या अर्थ होता है। आप जानते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होते हैं? अच्छे शासन की संकल्पना को समझने के लिए सबसे पहले हमें शासन का अर्थ समझना होगा कि शासन का अर्थ होता क्या है। वास्तविकता में शासन क्या है? सत्ताधारी द्वारा जन सामान्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना था, उनकी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए शक्ति और अधिकारों का प्रयोग ही शासन कहलाता है।
यानी जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वही शासन के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो भी व्यक्ति शासन में अपने शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं वो जो है अच्छे शासन का जो है एक एग्जाम्पल है। लेकिन वो अच्छे कार्य है तभी अच्छा शासन कहलाएगा, और बुरे कार्य हैं जन कल्याण के लिए नहीं है तो वो जो है कुशासन कहलाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासन शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित है। यानी साफ शब्दों में इसको कहा जाए तो जो है गवर्नेंस का जो गुड गवर्नेंस का मतलब यही होती है कि शासन की शक्ति, नीति, योजनाएं और परियोजनाओं से संबंधित होती है, जिसका उद्देश्य जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना होता है और लोग यह आशा करते हैं कि उनकी सरकार इस प्रकार से कार्य करे कि कम से कम जो है लागत पर परिणाम अधिक से अधिक आए। हर व्यक्तियों का यही इच्छा होता है कि कम से कम लागत हो और इसका परिणाम जो है अच्छे से अच्छे आए। शासन तब तक अच्छा बन जाता है जब सरकार के निर्णय और कार्य लोगों को सहमति, वैधता और उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। इस तरह अच्छा शासन प्रक्रिया में उच्च गुणवत्ता के संबंध होता है। यानी अच्छे शासन की अगर बात करते हो तो इसमें जो है अच्छा गुणवत्ता होना भी स्वाभाविक बात रहेगी। आज समाज के सभी वर्ग अपनी सरकार को उसके शासन के आधार पर परखते हैं। पहले क्रूर राज्य की अच्छे शासन का प्रभावशाली हथियार माना जाता था। प्राचीन व मध्य भारत में एक राजा जो सर्वसत्तावादी होता था ही सामान्य जो है जन सामान्य की जरूरतों के लिए कर्तव्यनिष्ठ एवं उत्तरदायित्व समझा जाता था। देखिए, कहते हैं सरकार को हमेशा जो है सशक्त होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, जो कि समय समय पर रहने पे अपना सही डिसीजन ले सके और जन कल्याण के लिए फैसला लिया जा सके, तो उसे शासन के लिए अच्छा शासन का नाम दिया जा सकता है। आज के आधुनिक में समय में अगर देखा जाए तो एक अच्छा शासन जागरूक नागरिक और उत्तरदायित्व संवैधानिक सरकार की ओर केंद्रित करता है। यानी अगर आज आधुनिक समय में आप देखोगे तो इसमें नागरिक का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहते हैं पॉलिटिकल में तो कोई भी बंदा खड़ा हो जाता है, यानी राजनीति में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लेकिन नागरिकों को समझना होता है कि कौन उनके लिए अच्छा कर रहा है और कौन उनके लिए खराब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है नागरिक जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है आधुनिक युग में। अच्छा शासन आज विकास की कुछ जो है मुख्य संकल्पना हो सकती हैं, और बहस का सबसे केवल इस प्रश्न से है कि विकास कैसे किया जाए। यह एक ऐसी धारणा है जो अपनी प्राकृतिक में विस्तृत और सकारात्मक भी है। यह विस्तृत इस कारण से है क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी अभिलक्षित करती है, और इस प्रकार से विकास मात्र उन अनुस्थापित भी बनी रहती है, बल्कि जन केंद्रित भी हो सकती है। दक्षता, ज्ञान, विकास हेतु सहयोग के लिए नए स्तरों पर जो है निर्माण इसकी सकारात्मक को दर्शाता है। आइए अब हम एक अच्छे शासन की विशेषताओं और उनके लक्षणों के बारे में जो है विस्तार पर वो जानने की कोशिश करें। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक तो यही आता है कि अच्छे शासन की क्या विशेषता हो सकती है। The second topic is the most important here arrive the feature of good governance. What is the feature of good governance here? There is the most important here. The next important question is the discussion on the good governance is what are the basic feature of element at good governance. There is the most important question here. A number of report and study have sought to identify a number of feature. In the Chimes of Kautilya, for instance, of following feature form part of good governance. The Kautilya say there are 4 features arrive there. Kautilya according. The first here, law and order. There is the most important feature of good governance, law and order maintenance. People carrying out administration. And second, third is justice and rationality as a basis of decision. And the last here, corruption-free governance. There is the most important here. The corruption-free governance is the most important for any state. The World Bank, it is a report of 1989 and 1992. The Organization for Economical Cooperation and Development. It means OECD. The Commission on Global Governance. 1995 United Nations Development of Program UNDP. The 1997 have all dealt with the attribute of a good governance extensive. The concern of the good governance has been to very clearly voiced in the Asian Development West report in a shape of following question. What is the question here? The most important question arrive here. The first question is here, do people fully participate in a governance? A second question, are you people fully informed? And third is, do people make a decision or can be they at least hold the decision makers accountable? And the next year, are the women equal partner with the man and the governance? And the next year, are the need of the poor and disadvantaged meet? And next year, are the people's human right guaranteed?
And next year are the need of future generation take into the account in the current policy. And the last year, do the people own their structure of governance? The first topic here is accountability. There is the most important feature here, accountability. It has been impossible to the almost uniformly that is a government has to be based on the principle of accountability those who are responsible for it. Accountability is a fact impulse that is the bureaucracy should be answerable for what they do or do not do. This is started to be administered in the parliamentary system through the question, debate, discussion, hurgatories, and the approvals committees and such that a method of parliament. The executive is to be responsive to the people through their representatives. It is, however, also true that his mechanism has increasingly proved to be ineffective for reasons of decline in the quality and character of debate and the representatives transformation and parliamentary system into a cabinet system of government and criminalizations of politics and fragmentation of society and politics. The second here, accountability is also ensured through the judicially review of their government decision or law. The citizens are also seeking a judicially intervention through the public interest litigation, means PIL, for a promote to action on content issue affecting the common life. Such a practice is directly or indirectly in the several countries like New Zealand, Canada, Australia, and India. Recently, a more effective mode of public accountability is their system of citizen character. The idea is a change to the bureaucratic culture in include people-friendly attitude instead of partial and indifferent, casual and causing of behavior to be a citizens. The old feudal value must give to the pace to the modern democratic value in a bureaucracy. On the accountable system of government, thus the purpose there is a following functional and behavioral trait of the civil servant. The first here achievement and oriental behavior. Second judicial use of the authorities. And the next the pursuit of the happiness of the people. And the next is here use of reason and experience as the basis of decision. And the next is shrinking of the work to be identified and punished. Time bonded to implementation of policy and plan. A strength of character intelligence is a prevalence and extensivity of civil servant. The next here is the uprightness of friendliness and the firmness of the devotion of the dealings with the orders. And next here capacity for doing a work which should be a supplementary by skill in action and the quotient for a perfection. In every country, the number of institutional and the legal agreement has been made to be sure of prevalence of characteristics on the accountable administration. For example, in India, setting up to institutions like a Central Vigilance Commission and the National Commission for Women, Scheduled Tribes, Scheduled Caste, Minorities, Backward Class, and the National Labour Commission, National Commission for Human Rights and Minorities, and the Controllers and Authority General of India are some each effective step of administration, social, legal, constitutional, and systematic commitment and the bureaucracy. It is seek to remove the tendency of the administrative bias as a corruption, alienation, and scarcity. The aim is to be a make administration poor sensitive, gender sensitive, and more sensitive to the demand and is a revenance of public. The purpose to is a prevent of undesirable act and behavior and to be a promote efficiency and integrated of public servant. The government have also initiated a number of other measures to see the actually operation of accountability and administration. Here the most important reference can be made of following here of management by the objective means MBO. The machinery for the redress of public grievance and recognition of the right to information and next year e-governance and information technology use. And the next year democratization and decentralization of power. And next year empowerment of the marginalized and groups especially of women.
and fair competitions and between to the public and private sector. And the next, a review of the number of law, rules and regulation. In order to establish accountability at the level of local government and empowerment of the is a marginalized of group. India Parliament passed a 73 Article and 74 Amendment Act of 1992, providing for among two other thinking 33.3% reservation for the women and scheduled caste and tribe to proportion to the population. I will discuss already a preview chapter and decentralization, development planning, enhancing the finance ability through the increasing of financial power and support to be a local body. Decentralization and is a decriminalization thus are the made of the is a benchmark of development administration. Moreover, 79 of ministries and department of the central government are the operating the structure of citizens and character. The character is account of here time limit and standard for a service and avenues of the grievance and the red wrestle and their last years of putting in the place is a monitoring system and independence scrutiny of the impulse mentioned and their charter. A number of state and union government have created a special agency and the unit of deal with the guarantees of a public emanating mainly from known is a disability of the officially absence of time frame for the disposal of the case and unsympathetic is the attitude of public official. His accountability is related to the system of the openness and transparency. If their decisions are not to be taken in the transparent and the open manner, one can question the improbability and such a decision. And there shall be a much less place for the federalisms and the nepotism and the pesticides in their treatment of citizens. India Parliament has encouraged the Right to Information Act of facilitate openness is a government. Central ministries and department has set up to the facilitation of counter with a wild publicity for the purpose of information and making a complaints. यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अच्छे गवर्नेंस के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसका अगला पॉइंट जो है एक अच्छे शासन की क्या विशेषता हो सकती है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है आपके समक्ष कि एक अच्छे शासन की क्या विशेषता होनी चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी भी गवर्नेंस के बारे में यानी शासन के बारे में उसकी विशेषता नहीं जानिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छे गवर्नेंस कहते किसको है, यानी गुड गवर्नेंस होता क्या है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आया है। कहते हैं अगला प्रश्न यही है कि अच्छे शासन की मूल्य विशेषता तत्व क्या हो सकती है। बहुत सी रिपोर्ट और अध्ययन से अनेक विशेषताएं बताई गई है। उदाहरण के तौर पर जो है कौटिल्य की पद्धति में निम्न विशेषताओं एक अच्छे शासन का निर्णय करती है। देखिए, कौटिल्य के द्वारा भी जो है अच्छे शासन करने की पद्धतियों को विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया था और कौटिल्य ने साफ शब्दों में इस बात को कहा था कि कानून एवं व्यवस्था। देखिए, कोई भी अच्छा गवर्नेंस के लिए जो जरूरी है सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है वो है लॉ एंड ऑर्डर। कहते हैं लॉ ऑर्डर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे जो होती है सभी के लिए कानून व्यवस्था बनाना ही अच्छे गवर्नेंस का सबसे अच्छा विशेषताओं में से एक माना जा सकता है। दूसरी बात आती है लोक कल्याणकारी प्रशासन। देखिए, कोई भी शासन तभी शासन करता है जब लोगों के कल्याण की बातें सोचता हो। अगर वो लोगों के कल्याण की बातें नहीं सोचता है तो उसकी शासन जो है उसकी कदम उखड़ जाती है। कहते हैं किसी को लालच दे देना या किसी के साथ जो है सिर्फ उसका फ़ायदा उठा लेना, ये प्रशासन की कोई भी नीति नहीं चलती है। क्योंकि हमारा भारत जो है पता है लोकतांत्रिक है और यहाँ पर लोगों की राज चलती है, न कि सरकार की राज चलती है। सरकार अगर जनता के लिए अच्छा से अच्छा करती है तो सरकार को जो है जनता सदैव ही चुनती है और सदैव ही उसको अपने पलकों पर बैठाती भी है। न्याय व तर्क के आधार पर निर्णय, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जो है कोई भी चीज़ न्याय व तर्क के आधार पर ही निर्णय लेने का प्रावधान एक अच्छे गवर्नेंस के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। देखिए, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी अगर वहाँ पर गवर्नेंस गुड गवर्नेंस चाहिए तो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। कहते हैं हमारे देश को खोखला जो कर रहा है भ्रष्टाचार ही है। कहते हैं बहुत से सरकार आई और भ्रष्टाचार पे अपना जो है बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ये भ्रष्टाचार को जो है ख़त्म करना संभव ही नहीं है। क्योंकि भ्रष्टाचार कहते हैं आज हर एक
राजनीतिक नेताओं में भरे पड़े हैं, बड़े बड़े अफसरों में भरे पड़े हैं। कहते हैं जिसके पास जितना पैसा है उतना ही वो पैसे के लिए ललायत है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार जो है मुक्त होना संभव ही नहीं लगता है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। कहते हैं बहुत से जो है मैंने देखा है, बहुत से प्रचार देखे हैं, बहुत से लोगों की जो है कदम उठाते हुए देखा है, लेकिन इस पर जो है कोई भी कदम जो है कभी साकार हो, ये संभव नहीं हुआ है अभी तक। विश्व बैंक ने अपनी 1989 में और 1992 के रिपोर्ट में जो है एसोसिएशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो है OCED, कमीशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस या 1995, यूनिट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP 1997 जो आदि में अच्छे शासन के गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश भी किया है। यानी विश्व बैंक ने हर चीज़ों को जो है अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया गया है कि अच्छे गवर्नर की क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा एक पॉइंट, अच्छे शासन के कार्य के लिए एसोसिएशन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में साफ साफ रख दिया गया था, और ये सारे प्रश्न कुछ इस प्रकार थे। पहला तो यही था कि क्या लोग शासन की पूरी तरह से भागीदारी करते हैं, क्या लोगों का जो इम्पोर्टेंट अपना भागीदारी शासन में रहता है, क्या लोग तक सभी जानकारी पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या लोग निर्णय ले सकते हैं अथवा क्या वे निर्णय लेने वाले को दायित्व बनाए रख सकते हैं, क्या शासन में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त हुआ है, क्या गरीब और पिछड़े लोगों की जरूरत पूरी होती है, क्या मानवाधिकार की गारंटी दी गई है, क्या वर्तमान नीतियों में भावी पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है एशियन डेवलपमेंट वैश्विक रिपोर्ट के अंतर्गत पूछा गया था, और ये प्रश्न बहुत ही गंभीर है, और इसको हर एक गवर्नेंस जो अच्छे गवर्नेंस की दावा करते हैं उनको इस सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सही सही देने की आवश्यकता है। यहाँ पर अगर पहली पॉइंट के रूप में अगर देखा जाए तो उत्तरदायित्व है। आखिर उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है। सर्वसम्मति से इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि शासन उन लोगों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, शासन में उनके उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाते हैं जो अच्छे पोजीशन पे हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि जो अच्छे पोजीशन पे होते हैं उनको जो है देशव्यापी फैसले लेने चाहिए, और हर एक व्यक्ति का जो है सही सही मार्गदर्शन करने के लिए सही फैसला होना ही जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। उत्तरदायित्व इस बात की ओर इंगित भी करता है कि नौकरशाही की भी जो है जवाबदेही होनी चाहिए कि वह क्या करती है और क्या नहीं करती है। संसदीय शासन प्रणाली ऐसा शासन प्रश्नों में वाद विवादों, बहसों और वजह अनुमोदन कमेटी की संसद के अन्य तरीकों के माध्यम से किया जाता है। कार्यपालिका अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि यह प्रक्रिया बहुत से कारणों से चलते जो है प्रभावहीन सिद्ध हुए हैं। यानी ये सारे क्रियाएं चलाई गई है, लेकिन इसका प्रभाव जो है देखने को नहीं मिला है। चर्चा ये प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता, चरित्र में गिरावट, संसदीय प्रणाली की सरकार का कैबिनेट प्रणाली की परिवर्तन, राजनीति के अपराधीकरण और समाज का विघटन इसके प्रभावशील होने का मुख्य कारण माना जाता है। यानी बात वही सब आ गई जो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि कहीं भी जो गुणवत्ता और चरित्र में गिरावट आ गई है प्रशासन में, जिसकी वजह से जो है इसकी जो गुणवत्ता नष्ट हो गई है। संसदीय शासन प्रणाली, सरकार जो है कैबिनेट जो है प्रणाली में परिवर्तन और राजनीति में अपराधीकरण हो जाने के कारण इन चीज़ों में जो है बहुत गिरावट आया है, और इवन कि लोगों की विचारधारा भी चेंज हुआ है राजनीतिक के रिगार्डिंग। लोग आज जो है कोई भी राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। इसका कारण मात्र यही होता है कि वो सोचते हैं कि राजनीतिक में जो है कई मानने में बहुत से गलत लोग रहते हैं। तो चलिए, ये तो लोगों की विचारधारा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। दूसरी बात यही आता है कि उत्तरदायित्व के सरकारी निर्णय और कानूनों को जो है न्यायिक समीक्षा के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाता है। यानी यहाँ पर जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सरकारी निर्णय और कानून की जो है न्यायिक समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नागरिकों की जो है जन सामान्य के हितों की अवहेलना करने वाले तत्कालिक मुद्दे पर जो है जनहित याचिका यानी PIL, जिसके विषय में हम पिछले चैप्टरों में कर चुके हैं, जिसको आपको समझना चाहिए कि जनहित याचिका होती क्या है, के माध्यम से जो है न्यायिक हस्तक्षेप की मांग किया जा रहा है। और इस प्रकार की कार्यप्रणाली जो है कई जगहों पर विकसित भी हो चुकी है, जैसे न्यूजीलैंड, कर्नाटक, ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी लोकप्रिय काफ़ी हो चुका है। यानी जनहित याचिका जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी जो है डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही के कुछ समय में उत्तरदायित्व का एक प्रभावशाली माध्यम जो है नागरिक चार्टर के प्रणाली आया है। यानी नागरिक चार्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से जो है काफ़ी चीज़ों को जो है उत्तरदायित्व को बताया जा सकता है। इस विचार की उत्पत्ति नागरिकों की नौकरशाही संस्कृति से बदल कर उनके स्थान पर
जो जनहितैषी व्यवहार की शामिल करने के लिए की गई है। देखिए, जनहितैषी यानी जनता का जो है व्यवहार और जनता के लिए किया गया अच्छा कार्य इसी व्यवहार के अंतर्गत आता है, ताकि पुराने उदासीन और अनौपचारिक और संवेदनशील व्यवहार को उनमें शामिल न किया जा सके। पुराने समवर्ती मूल्य के स्थान पर आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्य को नौकरशाही में स्थान दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से एक उत्तरदायित्व शासन प्रणाली के लोक सेवाओं के निम्न क्रियात्मक व्यवहारिक विशेषता को यहाँ पर जो है उजागर किया गया है। और ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि शासन प्रणाली में लोक सेवाओं की क्या जो व्यवहारिक विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात तो यही आता है कि उपलब्धियों अभिमुख्य व्यवहार होना चाहिए। अधिकारियों का जो है न्याय संगत प्रयोग होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। अधिकारों का जो है न्याय संगत प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोगों की खुशहाली के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। निर्णय लेते समय तर्क और अनुभव का सदैव प्रयोग करना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि जो कोई भी विशेष पद पे होते हैं वो निजी नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक होते हैं। इसलिए सार्वजनिक विचारधाराओं से ही आगे अपना फैसला लेना चाहिए। अपनी निजी जो है विचारधारा में उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि निजी एक व्यक्तिगत जो विचारधारा होती है वो स्वयं की भलाई के लिए ही होती है, प्रजा और जन कल्याण के लिए कभी नहीं हो सकती है। अपने दायित्व को पीछे हटने की पहचानना और दंड देना, ये भी प्रावधान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय सीमा में नीति और योजनाओं को लागू करना भी बहुत जरूरी है। आपने देखा भी होगा, कोई भी सरकार यही बनती है तो यही बात कहती है कि जो भी हमने वादा किया है उस पर हम जो है बहुत संभव मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन देखा जाए जैसे उनको शासन प्राप्त हो जाती है वो जनता को भूल के जो है अपने ही जो जीवन को यापन करने लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी जो है मिनिस्टर के लिए, कोई भी जो है जनता की भलाई करने वालों के लिए। कहते हैं दूसरी बात आता है चरित्र बल, योग्यता और लोक सेवाओं की लगन एवं व्याप्ति। कोई भी अगर बड़े लोग बनते हैं तो उनमें चरित्र बल होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए और लोक सेवाओं की लगन व्याप्त होना चाहिए। देखिए, लोक सेवा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो होता है लोगों की भलाई होती है। अगर आप लोगों की भलाई करोगे तो जनरल सी बात है दोबारा जो है लोग आपको ही चुनेंगे और आपको ही शासन पे बैठाएंगे, क्योंकि जनता भी यही चाहती है कि उनके भलाई के लिए कदम उठाया जाए। अगर बात यहाँ पर कदम उठाने की बात किया जा रहा है तो आपको पता है कि हमारे देश में जो शासन चल रही है उनका ये विचार था कि हम जो है जनता के लिए करेंगे, जनता के लिए शासित करेंगे। लेकिन अभी महंगाई ने इतना कमर लोगों के तोड़ दिया है कि हम तो सारी बातें भूल चुके हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, ये तो सपने से हो गए हैं। आज आम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं मिला है। आम गरीब जो है अभी भी रो रही है, त्रास रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट कंट्री बन चुके हैं, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़ गया है। अगर आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया होता तो आम जनता को इतनी तकलीफ नहीं होती और भारत में दिन पर दिन जो है गरीबों की संख्या नहीं बढ़ती। तो सरकार को इस बात पे मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर भारत में जो है इतनी जो है महंगाई किस लिए बढ़ रही है। सरकार को देखिए, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि ना तो हम मोबाइल या टेलीविज़न से या हम कुछ भी इससे हमें नहीं मिलने वाला है। हमें जब तक दो वक्त की रोटी पेट में नहीं जाएगा तब तक हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और ये हर एक गरीब, हर एक इंसान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सरकार बाहर जाके देखे और कुछ एक आम इंसान बन के देखे और कोई सामान खरीद के देखे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि आम जनता किस प्रकार जो है अपनी आंसू बहा रही है और सिर्फ सरकार को कोस रही है। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है जो हर एक प्रशासन वाले व्यक्तियों को समझने की आवश्यकता है। दूसरे से व्यवहार करते समय ईमानदारी, मित्रता और निष्ठा रखना चाहिए। कोई भी ये बात बहुत ज़रूरी होता है कि दूसरे के साथ व्यवहार हमारा किस प्रकार का होता है। निपुणता अनुकृष्टता से जो है निरूपिता कार्य की क्षमता मानी जाती है। तो ये गुड गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जिसको हर एक सरकार को इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक देश में कई प्रकार की जो है स्थानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं होती है ताकि उत्तरदायित्व प्रशासन की विशेषताओं की जो है व्यापकता से सुरक्षित किया जा सके। उदाहरण के तौर पर भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय श्रमिक आयोग, अल्पसंख्यक व मानव अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं भारत के लेखा महानियंत्रक जैसी संस्थाओं का गठन किया गया है। और नौकरशाही में राजनीतिक, कानूनी, संवैधानिक और व्यवस्पारक जो है वचनबद्धता का प्रबंधन करने के लिए किए गए प्रयास है। ये शासन की पक्षपाती प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, अलगवाद और जो गोपनीयता को दूर करने का प्रयास करती है।
इसका उद्देश्य प्रशासन गरीबों के प्रति संवेदनशील, लिंग अनुपातों के प्रति संवेदनशील तथा इससे भी बढ़कर जन सामान्य की जो है परेशानियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। देखिए ये बात जो मैंने अभी डिस्कस किया तो वही बात यहाँ पर आता है, गरीबों के प्रति संवेदनशील। गरीब क्यों व्यक्ति होते हैं? जब 2 वक्त की रोटी वो नहीं कमा पाते हैं, तो कहते हैं सरकार को ये चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि फ्री क्या चीज़ कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उनको ये देना चाहिए कि भारत में जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उन पर जोरदार जो है अब प्रहार करने की ज़रूरत है और हर जनता तक भोजन को पहुंचाने की आवश्यकता है। और भोजन उनके 5 किलो से देने से कुछ नहीं पहुंचने वाला है। अगर वो अच्छे साधारण बनाते हैं, अच्छे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जिसमें हर एक व्यक्ति को जो है काम मिल जाता है और हर व्यक्ति जो है गरीबी अनुपात से ऊपर उठता है, तो हो सकता है कि हमारा भारत देश का जो है सदैव विकास हो जाए। इसका उद्देश्य लोक सेवाओं के वंचित कार्यों को व्यवहारों को कम करना है, उनकी क्षमता व सत्यनिष्ठता को बढ़ाना है। सरकार ने भी अपने स्तर पर ऐसे उपायों की शुरुआत भी की है जिसे जो है प्रशासन में उत्तरदायित्व की कार्रवाइयों को जांच किया जा सके। यानी सरकार ने बहुत सी ऐसी चीज़ बनाई है जिसका सरकार के जो है कार्यों को जांच किया जा सकता है। चलिए ये जो है पारदर्शिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के ऊपर पारदर्शिता रखना भी जरूरी मान्यता रखता है। अब देखते हैं कौन कौन से पारदर्शिता यहाँ पर सरकार के प्रति जागरूक बनाता है। इस संबंध में निम्नलिखित ध्यान में रखा जाता है कि पहला तो यही कि परियोजना द्वारा प्रबंधन यानी MBO मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव, जन शिकायतों को दूर करने के लिए मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है। सूचना के अधिकारों को स्वीकार करना, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं ई शासन करना, सत्ता का जो है लोकतांत्रिकरण और विकेंद्रीकरण करना, हश्र में खड़े समूहों का सशक्तिकरण और विशेषकर महिलाओं के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य प्रतियोगिता, विभिन्न प्रकार के कानूनी नियमों और विनियम की जो है समीक्षा करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। स्थानीय सरकार के स्तर पर उत्तरदायित्व की स्थापना करने और हाशियों में खड़े समूहों का समर्थन करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में जो है 73 और 74वें संविधान संशोधन की पारित किया गया था, जिसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 73 आर्टिकल और 74 आर्टिकल संशोधन के लिए, ठीक है। जिसमें जो है सामान्य अन्य चीज़ों को साथ महिलाओं को जो है 33% आरक्षण और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण किया गया था। इसके साथ ही विकेंद्रीकरण विकास योजना वित्तीय शक्तियों में वृद्धि तथा स्थानीय निकाय को अधिक वित्तीय शक्ति प्रदान की गई थी। इस प्रकार विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण को जो विकासात्मक प्रशासन का मूल्यधार बनाया गया था। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो है 79 मंत्रालय एवं विभाग नागरिकों चटर के रचना के संचालित कर रहे हैं। ये चटर निम्नलिखित कारण विवरण देते हैं। पहला तो यही बात देते हैं कि सेवाओं की जो है समय सीमा की और मानदंडा के ऊपर जो है अपने विचारधारा रखते हैं, शिकायतों को कम करने के ढंग देखते हैं और चटर को लागू करने की जांच प्रणाली की स्वतंत्र समीक्षा के निर्धारित करना इनका सबसे बड़ा दायित्व बन गया है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लोक शिकायतों और शीघ्र जो है निस्तारण हेतु विशेष संस्थाओं एवं इकाई की स्थापना भी की गई है। इसका उद्देश्य है अधिकारी कल्याणकारी का ध्यान न देना, मामलों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगने पर जो है अधिकारियों का जो है सहनशील पूर्ण रवैये पर अंकुश लगाना। देखिए मैंने कहा ना, हर चीज़ का रूल रेगुलेशन बना हुआ है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो होती है कागजी बातों में ही होती है, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर आप चले जाओ कुछ बनवाने के लिए तो उसको कहते हैं 2-4 महीने तो लग ही जाते हैं। यानी जब तक आपके चप्पल नहीं घिसेंगे तब तक का काम भी आपके पूरे नहीं होंगे, और काम भी पूरे तब होंगे जब आप उसके जेब गर्म करोगे। तो ये सारी बातें बनी हुई है, लेकिन इसका सरकार की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। शासन तंत्र में उत्तरदायित्व के बहन की भूमिका खुली और पारदर्शी होनी चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि भूमिका खुली और पारदर्शी होना चाहिए। किसी भी निर्णय या कार्य में पारदर्शिता न लाने पर उसमें भी जो है भेदभाव की भूमिका होने के आदेश रहता है, यानी अंदेशा तो रहता है कि कहीं उसके भेदभाव न किया गया हो। पारदर्शिता से जो है पक्षपात की संभावना कम रहती है, सभी को पूर्वाग्रह के जो है मुक्ति मिलती है। भारतीय संसद ने सभी नागरिकों के लिए सूचना प्राप्ति के अधिकार की व्यवस्था भी किया है, और केंद्रीय मंत्रालय और विभाग खूब प्रचार प्रसार के साथ ऐसे काउंटर खोल कर लोग शिकायतों को आमंत्रित भी करते हैं। कहते हैं बहुत से रूल रेगुलेशन बनाई जाती है, लेकिन इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है, जब इसको आप प्रयोग करोगे तो आपको स्वयं ही इस बात का आभास हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना मत भूलना। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।